ہمارے لیکچر کا عنوان ہے سچا بادشاہ۔ دنیا کی تاریخ جو ہے وہ بہت سارے بادشاہوں کا ذکر کرتی ہے، اور ان میں سکندر اعظم جیسا ایک بہت زبردست بادشاہ ہے۔ سکندر اعظم اور یسوع میں بہت ساری باتیں ملتی جلتی ہیں۔ یسوع نے بھی 33 سال کی عمر پائی، سکندر اعظم نے بھی 33 سال کی عمر پائی، اور ایک دنیا کے بڑے حصے پر وہ قابض ہوا، اور وہ ایک بلا کا جنگجو اور زبردست بادشاہ تھا۔ ہم فرعون کے بارے میں جانتے ہیں جس نے ایک بڑی دنیا پر حکومت کی۔ سائرس بادشاہ کے بارے میں جانتے ہیں جو ہندوستان تک حکومت کرتا تھا، اور 127 صوبوں میں اس کی حکومت تھی۔ بائبل مقدس بہت سارے بادشاہوں کا ذکر کرتی ہے۔ پہلا بادشاہ ساؤل، پھر اس کے بعد داؤد کا ذکر کرتے ہیں، سیموئیل کا، اور پھر جب اسرائیلی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے، 10 قبیلے الگ، 2 قبیلے الگ، تو ان میں بہت سارے بادشاہوں کا ذکر کرتی ہیں۔ یہ جتنے بھی بادشاہ ہیں، یہ سارے کے سارے بادشاہ جو اس دنیا میں برپا ہوئے ہیں، ان سب نے کوشش کی کہ وہ دنیا میں حکومت کر سکیں۔ ان سب نے کوشش کی کہ، اور ان سب نے اپنے لوگوں کو ایک لالچ دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں نجات دلاؤں گا۔ ان سب نے یہ دنیا کو یہ کہا کہ میں جو ہوں وہ تمہیں دنیا کی ہر ایک اچھی چیزوں کو تمہارے لیے میں پیش کروں گا، اور ان سب نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ میں ایک حقیقی بادشاہ ہوں۔ اور یہاں تک کہ فرعون کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ کیا ہے جی، کیا کہتا تھا وہ اپنے آپ کو؟ خدا۔ وہ کہتا تھا کہ میں خدا ہوں۔ تو بہت سارے بادشاہوں نے اس بات کا ذکر کیا۔ لیکن آج ہم نے جو پہلا لیکچر ہم نے پڑھا تھا، ہم اس کے ساتھ ریلیٹ ہو کر اس لیکچر کو دیکھیں گے۔ اس لیکچر کا عنوان تھا کہ 3 ہمارے مسائل تھے، اور ان 3 مسائل کے حل کے لیے 3 قسم کے لوگوں کو خدا نے چننے کی کوشش کی، اور خدا نے بادشاہوں کو چنا، خدا نے کہنوں کو چنا، خدا نے نبیوں کو چنا کہ کسی نہ کسی طریقے سے انسان کے جو 3 مسائل ہیں یہ حل ہو جائیں، مگر یہ 3 مسائل حل نہ ہو سکیں۔ پھر خدا نے کیا کیا کہ اس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح ناصری کو بھیجا تاکہ وہ ان مسائل کو حل کر سکے، اور وہ ایک سچے بادشاہ کے روپ میں ہمارے سامنے آیا۔ جب ہم زبور 2 اور اس کی 6 آیت دیکھیں، کتاب میں آئے گا حقیقی بادشاہ جو ہے، زبور 2 اس کی 6 آیت پڑھ لیجیے گا جی۔ میں تو اپنے بادشاہ کو اپنے کوئی مقدس سہون پر بٹھا چکا ہوں۔ جی، خدا کہتا ہے کہ اب میں تمہیں ایک حقیقی بادشاہ دینے کو ہوں۔ اس تمام کائنات کو، بنی ہوئے انسان کو ایک ایسا بادشاہ دینے کو ہوں کہ جس کی لڑی ہوئی جنگ میں کبھی ہار نہیں ہوتی۔ بادشاہ جب جنگ لڑتے ہیں تو بادشاہوں کی جنگوں میں فتح بھی ہوتی تھی، بادشاہوں کی جنگوں میں شکست بھی ہوتی تھی۔ میں نے بتایا کہ سکندر اعظم جیسا عظیم بادشاہ یہاں پر آ کر راجہ پورس سے ہارا، اور فرعون جیسا ایک بہت بڑا بادشاہ بھی اس کی زندگی میں، اس کی تاریخ میں بھی ہار میں ملتی ہے۔ ہمیں داؤد کی زندگی ملتی ہے کہ وہ ایک وقت میں ہار کے بہت قریب تھا، اور ہمیں ساؤل کے بارے میں ملتا ہے کہ فلسطینیوں سے وہ ہارنے والا ہوا ہے۔ دنیا میں اور بڑے بڑے بادشاہ جو ہارنے والے ہوئے، مگر خدا کہتا ہے کہ اب میں ایک ایسا حقیقی بادشاہ لانے کو ہوں جس کی لڑائی میں کبھی بھی ہار نہیں ہے، اور اگر وہ خود کبھی نہیں ہارے گا تو ہم ایمان رکھتے ہیں کہ جو اس کے پیروکار ہیں وہ بھی کبھی نہیں ہاریں گے۔ اگر ہمارا حقیقی بادشاہ نہیں ہارے گا تو ہم جو اس کے ڈسائپل ہیں، ہم جو اس کے شاگرد ہیں، ہم جو اسے سچے بادشاہ کے طور سے مانتے ہیں، ہم بھی اس جنگ میں کبھی نہیں ہاریں گے۔ جو جنگ کس کے خلاف ہے جی؟ ابلیس کے خلاف جو جنگ ہے۔ ہم ابلیس کے خلاف جنگ کبھی نہیں ہاریں گے، اور یہی اس بادشاہ کا جو ہے وہ اعلان ہے کہ اب میں جس بادشاہ کو خدا کہتا ہے اپنی کوئی مقدس پر بٹھا چکا ہوں، وہ تمہیں ہمیشہ فتح دے گا۔ زبور 18 اس کی 50 آیت پڑھ لیجیے گا جی۔ جی اسی بک میں وہ اپنے بادشاہ کو بڑی نجات عنایت کرتا ہے، اور اپنے ممسوح داؤد اور اس کی نسل پر
हमेशा शफकत करता। हमेशा शफकत करेगा, बादशाह को निजात इनायत करेगा, यानी कि वो दुश्मनों से जंग करके हमें हमेशा के लिए निजात दे देगा। वो जब जंग लड़ेगा, जो हकीकी बादशाह है, तो उसके जंग लड़ने के वसीला से इंसान हमेशा के लिए निजात पाएगा उस जंग में जो कि वो अबलीस के खिलाफ जंग लड़ रहा है। यशायाह 9 बाब और उसकी 6-7 आयत पढ़ लीजिएगा जी। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा न होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी सल्तनत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा, और अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा। रब्बुल फाज की गयूरी ये करेगी। इसमें आज से अब तक हुक्मरान रहेगा, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं, क्योंकि यही हमारा मेन थीम है। अब एक ऐसा हकीकी बादशाह इस दुनिया में आने को था कि जो कि हमेशा हुक्मरानी करेगा, जिसकी हुकूमत की कोई इंतहा नहीं होगी, जिसकी हुकूमत कभी ख़त्म नहीं होगी, और जो अपनी जंग में कभी हारेगा नहीं। ये 3 खूबियां जो हैं वो उस बादशाह में हमें नज़र आती हैं कि वो एक ऐसा बादशाह होगा। और कलाम कहता है कि अब आए बनीनो इंसान, तुम्हें एक ऐसा बेटा बख्शा जाएगा, सल्तनत जिसके कंधे पर होगी, और उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा नहीं होगी, और वही है जो कि तुम्हें जंग में फतह देगा। इब्रानियों 2 बाब उसकी 14 आयत हम पढ़ेंगे। इब्रानियों 2 बाब उसकी 14 आयत। बस जिस सूरत में कि लड़के खून और गोश्त में शरीक हैं, तो वो खुद भी उनकी तरह उनमें शरीक हुआ, ताकि मौत के वसीले से उसको जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी, यानी इब्लीस को तबाह कर दे। जी, असल जो जंग थी हमारी वो कौन सी थी? क्या ये जंग जो हम इस दुनिया में लड़ते हैं, पाकिस्तान इंडिया की जंग के लिए एक दूसरे के खिलाफ होते रहते हैं, अभी आर्मीनिया और अज़रबैजान की जंग चल रही थी और जंगें लड़ती, क्या जिस बादशाह की यहाँ पर जिक्र हो रहा है और जिस जंग का जिक्र है वो कौन सी जंग है? जो हमारी असल जंग है वो क्या है? हमारी असल जंग है अबलीस के खिलाफ जंग। हमारी असल जंग कौन सी है जी? अबलीस के खिलाफ जंग, इंसानों के खिलाफ नहीं। हमारी असल जंग जो है वो अबलीस के खिलाफ है, और ये बादशाह जो है हमें जो फतह देगा वो उस जंग में फतह देगा जो हम अबलीस के खिलाफ जंग लड़ने के लिए हम हर वक्त तैयार हैं, और अबलीस इस जंग में हमारे साथ हर वक्त जंग करने के लिए तैयार है। सो उस जंग में कलाम कहता है कि वो तुम्हें हकीकी बादशाह जो फतह देगा। पहला यूहन्ना 3 बाब और उसकी 8 आयत पढ़ लीजिएगा जी। पहला यूहन्ना 3 बाब उसकी 8 आयत। जो शख्स गुनाह करता है वो इब्लीस से है, क्योंकि इब्लीस शुरू ही से गुनाह करता रहा है। खुदा का बेटा इसीलिए जाहिर हुआ था कि इब्लीस के कामों को मिटाए। जी, खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ, यीशु मसीह नासरी इसलिए जाहिर हुआ, मसीहा इसलिए जाहिर हुआ कि वो अबलीस और उसके कामों को मिटा दे। और न सिर्फ वो इस जंग में फातेह है, बल्कि वो अपने पैरोकारों को भी, अपने डिसाइपल्स को भी, अपने शागिर्दों को भी, और हम सब को, हम जो यीशु मसीह के शागिर्द हैं, वो हमें इस लायक बनाता है कि हम उस जंग में फ़तह हासिल करने वाले हों। और जब आप मुकाशवा की किताब उसका 17 बाब और 14 आयत पढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा है। वो बर्रा से लड़ेंगे और बर्रा उन पर गालिब आएगा, क्योंकि वो खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह है। प्रेज़ गॉड। और जो बुलाए हुए और बरगजीदा और वफादार उसके साथ हैं, वो भी गालिब आएंगे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। और वो उनसे लड़ेंगे और उन पर गालिब आएंगे। क्यों? इसलिए कि हमारा जो सिपा सलार है यीशु मसीह नासरी, वो बादशाहों का भी बादशाह है और खुदावंदों का भी खुदावंद है। और ना सिर्फ वो, बल्कि लिखा जो बुलाए हुए हैं, यानी मैं और आप, जो बरगजीदा हैं और जो वफादार हैं यीशु मसीह के, वो भी उसके साथ मिलकर गालिब आएंगे। ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए खुशी की खबर है कि खुदा ने हमें एक हकीकी बादशाह और एक सच्चा बादशाह खुदा ने इनायत कर दिया है, जो कि कभी नहीं हारने वाला किसी भी जंग में। और न सिर्फ वो खुद जीतेगा, बल्कि कलाम ये कहता है वो हम सब को भी
जिताएगा, वो हम सब को भी इस जंग में फ़तह देने वाला होगा, जो जंग खुदावन ने इस दुनिया में जो लड़ी जा रही है। आए हम इसके सेकंड मौजू की तरफ चलते हैं, और सेकंड जो मौजू है वो हमारा है सच्चा काहिन। काहिनों का क्या काम था जी? बोले बताएगा कोई, काहिनों का क्या काम था जी? काहिन क्या करते थे? कुर्बानी गुजरानते थे, और जी ये दो बातें मैंने बताई थी, और ये दो बातें ही काहिनों का काम था। पहली बात ये कि काहिनों का काम था कि वो कहानत करते थे, और यानी कि कुर्बानियां गुजरानते थे, और जितनी भी कुर्बानियाँ होती थी वो काहिनों के पास लाई जाती, और काहिन उन कुर्बानियों को गुजरानते थे। और दूसरी बात ये कि वो शरीयत को लोगों तक पहुंचाया करते थे, बताया करते थे, सिखाया करते थे। खरूज 29 और उसकी 9 आयत पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर हमें इसराइल की तारीख के पहले काहिन के चुनाव के बारे में जिक्र है। जी पढ़ लीजिएगा जी। बस इस्राएलियों की सारी जमात से ये कह दो कि इसी महीने की 10वें दिन सी नहीं, खरूज 29 उसकी 9 आयत। इससे अगले वाला है, इससे अगले वाला है। और हारून उसके बेटों के कमर बंद लपेट कर उनके पगड़ियां बांधना, ताकि कहानत के मनसब पर हमेशा के लिए उनका हक रहे, और हारून और उसके बेटों को मखसूस करना। जी यहाँ पर हमें पहले काहिन का चुनाव मिलता है, जो इसराइल की तारीख का पहला काहिन है। और इसके लिए भी बड़ा एक झगड़ा था कि कौन काहिन बनेगा, कौन काहिन बनेगा। खुदा ने फिर इसका फैसला किया, और खुदा ने हारून, पहले लावी के कबीले और फिर लावी के कबीले में से हारून और उसके बेटों को चुना कि वो कहानत का काम जो है वो करने वाले। सो खुदा ने काहिनों को चुना। और अब काहिनों का क्या काम था? मलाकी 2 बाप उसके 7 आयत जब आप पढ़ते हैं तो उसमें हमें काहिनों का काम मालूम होता है। जी पढ़ लीजिएगा जी। क्योंकि लाजम है कि काहिन के लब मार्फत को महफूज रखें, और लोग उसके मुंह से शरई मसाइल पूछें, क्योंकि वो रब्बुल अफ़वाज का रसूल है। जी जैसा कि मैंने कहा कि काहिन का काम है कि वो मार्फत को महफूज रखें, और उसके मुंह से लोग शरई मसाइल पूछने वाले हों। वो अपनी उस किताब को, उस शरीयत को जो खुदा ने उसे दी थी, वो लोगों तक पहुंचाने वाला होता था, लोगों को सिखाने वाला होता था, लोगों की कुर्बानियां खुदा को पहुंचाने वाला होता था। मगर एक जो बात जो आगे जाकर एक परेशानी का वसीला बन गई, और वो ये थी कि काहिन कामिल ना निकले। खुदा ने कहा कि काहिन जो हैं वो मेरा काम करेंगे, मगर खुदा ने एक बात देखी, और वो ये बात देखी थी काहिन भी कामिल नहीं थे। सो काहिन कामिल नहीं थे, और उनकी कामलियत जो है वो पूरी नहीं हो सकी। जब आप इब्रानियों 7 बाब और उसकी 27 आयत देखें तो यहाँ पर हमें मिलता है इस बारे में। जी पढ़ लीजिएगा जी। और उन सरदार काहिनों की माने उसका मोहताज ना हो कि हर रोज़ पहले अपने गुनाहों और फिर उम्मत के गुनाहों के वास्ते कुर्बानियाँ चढ़ाए, क्योंकि इससे वो एक ही बार कर गुजार जिस वक्त अपने आप को कुर्बान किया। इसलिए कि शरीयत तो कमज़ोर आदमियों को सरदार काहिन मुकर्रर करती है, मगर उस किस्म का कलाम जो शरीयत के बाद खाई गई उस बेटे को मुकर्रर करता है, जो हमेशा के लिए कामिल किया गया। सो काहिन क्या करते थे कि सबसे पहले वो अपने गुनाह की कुर्बानी चढ़ाया करते थे, और फिर उसके बाद उम्मत के गुनाह की कुर्बानी चढ़ाया करते थे। मगर चूँकि वो अपने गुनाह की कुर्बानी चढ़ाते थे, इसलिए कलाम कहता है कि वो हरगिज़ कामिल नहीं निकले। जब इब्रानियों 10 बाब और उसकी 11 को पढ़ लें तो यहाँ पर हमें उनकी कुर्बानियों के बारे में मिलता है। जी पढ़िएगा जी, इब्रानियों 10:11। और हर एक काहिन तो खड़ा होकर हर रोज़ इबादत करता है, और हर एक ही तरह की कुर्बानियाँ बार बार गुजारता है, जो हरगिज़ गुनाहों को दूर नहीं कर सकता। जी वो जो कुर्बानी गुजरानता था, वो कुर्बानी भी कामिल नहीं थी, कुर्बानी चढ़ाने वाले भी कामिल नहीं थे, और हर साल वो कुर्बानी चढ़ाता था, हर साल वो कुर्बानी चढ़ाता था, और पिछली कुर्बानियाँ रायगा हो जाते, फिर एक नई कुर्बानी चढ़ाती, फिर पिछली कुर्बानियाँ रायगा, फिर एक नई कुर्बानी चढ़ाते। और खुदा ने देखा कि ये भी कुर्बानियाँ
कामिल नहीं हैं और ना इन कुर्बानी को चढ़ाने वाले कामिल हैं, क्योंकि जब आप एबार 4 बाप उसकी 3 आयत पढ़े तो यहाँ पर काहिनों के बारे में लिखा जाता है। जी एबार 4:3 पढ़ लीजिएगा जी। अगर काहिन मसूह ऐसी खता करे जिससे कौम मुजरिम ठहरती हो, तो वो अपनी उस खता के वास्ते जो उसने की है एक बेऐब बछड़ा खता की कुर्बानी के तौर पर खुदावन के हजूर गुजराने। और यिर्मयाह 5:31 भी पढ़ लीजिएगा जी। नबी झूठी नबूवत करते हैं और काहिन उनके वसीला से हुक्मरानी करते हैं, और मेरे लोग ऐसी हालत को पसंद करते हैं। अब तुम इसके आखिर में क्या करोगे? जी उसने ये देखा कि काहिन जो हैं वो हरगिज कामिल नहीं निकले, सो नबी झूठी नबूवत करते हैं और उनकी झूठी नबूवतों के सिले पर जो है वो काहिन जो है वो मेरे लोगों पर हुक्मरानी करते हैं और लोग भी उनके पीछे वैसे होते जा रहे हैं। और दूसरी बात उसने ये देखा कि काहिन जो है वो खतावार निकले, और जब काहिन खैमा उसमें साल में एक दफ़ा जाता था पाक मुकाम में, तो वो सबसे पहले अपनी खता की कुर्बानी चढ़ाता फिर जाता। सो जब ये सब बातें इस बात को जाहिर करती थी कि अब भी कहीं ना कहीं कोई कमी है, अब भी कहीं ना कहीं कुछ है जो कि कम रह गया है और हमें उसको पूरा करने की ज़रूरत है। सो फिर इन सब बातों को पूरा करने के लिए खुदा ने एक फ़ैसला किया, और वो फ़ैसला ये था कि खुदा ने एक हकीकी काहिन हमारे लिए मुकर्रर किया, और उस हकीकी काहिन का नाम हम जानते हैं कि यीशु मसीह नासरी है। खुदा ने एक हकीकी काहिन का चुनाव खुदा ने किया। इस हकीकी काहिन के बारे में हम पढ़ेंगे, और इब्रानियों 10 बाप उसकी 12 पढ़ लीजिएगा जी। लेकिन ये शख्स हमेशा के लिए गुनाहों के वास्ते एक ही कुर्बानी गुजरान कर खुदा की दाहिनी तरफ जा बैठा। इसी तरह इब्रानियों 10:14, क्योंकि उसने एक ही कुर्बानी चढ़ाने से उनको हमेशा के लिए कामिल कर दिया है जो पाक किए जाते हैं। जी अब एक शख्स खुदा ने मुकर्रर किया, खुदा ने अपने बेटे यीशु को भेजा, और यीशु मसीह की जो कुर्बानी है वो एक कामिल कुर्बानी है, नंबर 1। दूसरी बात है उसकी कुर्बानी एक ही दफ़ा चढ़ाई जाने वाली कुर्बानी। ये कुर्बानी उन कुर्बानियों की मानी नहीं जो बार बार चढ़ाई जाए। नंबर 1 उसकी कुर्बानी एक कामिल कुर्बानी थी, और यही वजह है कि हम इसे सच्चा काहिन तस्वुर करते हैं। दूसरी कुर्बानी जो है वो बार बार चढ़ाई जाती थी, मगर ये कुर्बानी एक ही बार चढ़ाई गई, नंबर 1। नंबर 2 ये एक ऐसी कुर्बानी थी जो कामिल कुर्बानी थी, और यही वजह है कि इसकी कुर्बानी को खुदा ने पसंद किया और इसे खुदा ने सच्चे काहिन के तौर पर इसे पेश किया है। और हम सब जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की क्यों कुर्बानी जो है वो कामिल कुर्बानी थी। कोई बताएगा इसका मतलब क्या है, क्यों कामिल कुर्बानी थी? यस बिल्कुल, वेरी गुड। मसीह की कुर्बानी इसलिए कामिल कुर्बानी थी क्योंकि वो खुद गुनाहों से पाक एक शख्स था, और चूंकि बर्रों की कुर्बानियां इंसान के नेमुल बदल नहीं हो सकती थी ना, खता इंसान ने की और उसके तौर पर बर्रों को कुर्बान किया जाता था। लेकिन मैंने कल ये बात बताई थी कि सब बातें जो पहले होती गईं वो मसीह का अक्स थी और वो मसीह को असल में पेश करी थी। सो यीशु मसीह ने एक कामिल कुर्बानी मेरे और आपके लिए गुजरानी, और एक पाक और मुकद्दस कुर्बानी को उसने गुजारना। और जब हम इसके अगले सफ़े पर आएँ, ज़बूर 110 उसकी 4 आयत, बड़ी ज़बरदस्त आयत है जी, पढ़िएगा क्या लिखा है। खुदावंद ने कसम खाई है और फिर फिरेगा नहीं कि तू मुल्क के सदक के तौर पर अब तक काहिन है। ये एक हमारा जो मौजू है, ये उस मौजू की जान ये लफ्ज़ है। वो कैसा काहिन है जो अब तक काहिन है, हमेशा तक काहिन है। इसके बाद दूसरे काहिन की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद एक जो दुनियावी काहिन थे वो पैदा होते मर जाते, पैदा होते मर जाते, फिर दूसरा काहिन, फिर तीसरा काहिन, फिर चौथा काहिन, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, उसका बेटा। मगर ये जो काहिन हमें खुदा ने अनायत किया है ये एक अबदी काहिन है, ये अब तक कहानत करने वाला है, इसकी सल्तनत की कोई इंतहा नहीं है, और ये एक ऐसा काहिन है जो कभी नहीं मरने का। हम खुदा का शुक्रिया गुजार हैं इस काहिन के लिए जो खुदावन ने हमारे लिए मुकर्रर किया। जब इब्रानियों 9 बाप उसकी 12 आयत पढ़ें तो यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पर क्या लिखा है। फिर इसके बाद मरकज़ 10:45 भी जी। और बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकाम में एक ही बार दाखिल हो गया और अब्दी खलासी कराई। जी मरकज़ 10:45।
क्योंकि ابن आदम भी इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बतेरों के बदले फिदिया में दे। जी, अब इसकी कुर्बानी कामिल क्यों है? क्योंकि इंसान के बदले इंसान वाला काम इसने पूरा किया, और ये अपना खून लेकर, अपना खून प्याले में लेकर, और एक ही बार अपने आप को इसने बाप के सामने पेश कर दिया। और जब आप मुकाशफे की किताब पढ़ते हैं तो वहाँ पर मुकाशफा का मुसन्निफ बयान करता है कि मैंने गोया तख्त के बीच में एक ज़बा किया हुआ बर्रा वहाँ पर देखा, और ये वो ज़बा किया हुआ बर्रा है जो अपना ही खून लेकर पाक मकान में दाखिल हुआ, और एक ही बार दाखिल होकर। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हमने पढ़ा है, वो ये अबदी खलासी, ये जो है वो अबदी काहिन के वसीला से, अबदी काहिन के वसीला से जो हमारी खलासी हुई है वो अबदी खलासी है। जो दुनियावी काहिन थे वो जो कुर्बानियाँ देते थे उनसे अबदी खलासी नहीं होती थी, बल्कि वक्ती खलासी होती थी। वक्ती काहिन, वक्ती खलासी, अबदी काहिन, अबदी खलासी, ये है इस काहिन की और दूसरे काहिनों का डिफरेंस जो है वो खुदा ने यहाँ पर बयान किया। और फिर इब्न आदम इसलिए आया कि वो अपनी जान बतेरों के फिदिया में देने वाला हो, फिदिया में देने वाला हो। तो चूँकि उसने हमारा इफ्जी बना, हमारा फिदिया बना, इसलिए उसकी कुर्बानी जो है वो एक अबदी कुर्बानी है। और जब हम रोमियो 8 बाब पहली दूसरी आयत पढ़ते हैं तो ये सब चीज़ों का निचोड़ हमें बयान करते हैं। जी पढ़ लीजिएगा जी। बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सज़ा का हुक्म नहीं, क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आज़ाद कर दिया। जी, वो जो काहिन थे, नाकामिल जो काहिन होते थे, वो क्या करते थे? हम पर गुनाह लागू करते थे। ये उनका असल काम था, शरीयत के वसीले। ये एक बड़ा गहरा टॉपिक है। काहिन जो है थे वो शरीयत के वसीले हम पर गुनाह लागू करते थे। ये उनका ख़ास काम था। और वो क्योंकि वो हमें जब बताते थे कि आप इस हवाले से गुनाहगार हो तो वो गुनाह पर लाजिम हो जाता था। अब इसने क्या किया? सच्चे काहिन ने हमें गुनाह और उसकी शरीयत से आज़ाद कर दिया है। यह है फ़र्क सच्चे काहिन का, और यह है फ़र्क एक नाकामिल काहिन का। सो जो काहिन पहले थे वो हम पर गुनाह लागू कराते थे, और जो हमारा सच्चा काहिन है उसने हमें हर किस्म के गुनाह और उसकी शरीयत से आज़ाद कर दिया है। और इस बात के लिए हम खुदा के शुक्रगुज़ार हैं। आए हम लेक्चर नंबर 15 की तरफ चलेंगे। लेक्चर नंबर 15 है सच्चा नबी। सच्चा नबी जो हमारे 3 मसले थे, उनमें पहला मसला था शैतान जिससे हमें जंग करनी थी, दूसरा मसला था गुनाह, और तीसरा मसला क्या था जी? खुदा से जुदाई। और मैंने आपको बताया था कि नबियों को खुदा ने मुकर्रर किया कि वो इंसान और खुदा के दरमियान जो जुदाई है उसको ख़त्म करने की कोशिश करें। और नबियों ने कोशिश की, बहुत सारे नबियों को खुदा ने भेजा, और खुदा नबियों के इसलिए बात करता था। आमोस 3 बाब उसके 7 आयत पढ़ लीजिएगा जी। यकीनन खुदा कुछ नहीं करता जब तक कि अपना भेद अपने खिदमत गुजार नबियों पर पहले आश्कारा ना। जी, खुदा नबियों पर अपने भेद जाहिर करता था, खुदा नबियों को इस्तेमाल करता था, खुदा नबियों के वसीले कलाम करता था, और खुदा नबियों को इसने इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया कि वो जो जुदाई इंसान और खुदा की जुदाई है,
इंसान और खुदा की जुदाई जो है वो ख़त्म करने के लिए उसने कोशिश की कि वो नबियों को इस्तेमाल करें, और यकीनन नबियों ने काम किए, नबियों ने कोशिश की, नबियों ने खुदा का पैगाम जो है वो इंसानों तक पहुंचाया, और नबी इस मकसद के लिए उन्होंने अपने आप को पेश किया। मगर एक प्रॉब्लम आ गई। यिर्मयाह की किताब 23 बाब और उसकी 11 आयत पढ़ लीजिएगा जी, सफ़ा पलट के। यिर्मयाह 23:11। कि नबी और काहिन दोनों नापाक हैं। हाँ, मैंने अपने घर के अंदर उनकी शरारत देखी, खुदावंद फरमाता है। नबी और काहिन दोनों क्या हैं जी? नापाक हैं, और दूसरी बात है कि वो शरारत से भरे हुए हैं। फिर खुदा ने ये कोशिश तो की, लेकिन नबियों के अंदर झूठापन, लालचपन और शरारत उनके अंदर आश्कार हो गई, और खुदा ने देखा कि ये भी इस लायक नहीं रहे कि ये मेरे और इंसानों के दरमियान की जुदाई को ख़त्म करने वाले हो। जब हम हिजकिय्याह की किताब उसका 22 बाब 25 आयत पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी कुछ इसी किस्म के नबियों का जिक्र हमें मिलता है जी। पढ़ेगा जी। जिसमें उसके नबियों ने साजिश की है, शिकार को फाड़ते हुए गरजने वाले शेर बब्बर की मानित वो जानों को खा गए हैं। वो माल और कीमती चीज़ों को छीन लेते हैं। उन्होंने उसमें बहुत सी औरतों को बेवा बना दिया। ओ माय गॉड, इसमें नबियों की बहुत सारी खामियों का खुदा जिक्र करता है, और ये खामियां इंसानों तो इन सब नबियों में पैदा हुई। उनके अंदर लालच आ गया, और उन्होंने उन सब कामों को जो खुदा ने जिससे उन्हें मना किया था उन सब कामों को भी करने वाले हुए। तो नतीजा क्या निकला कि जो कुछ खुदा चाहता था उन नबियों के वसीले से वो नबी पूरा ना कर सके। फिर एक और खूब खामी जो नबियों में थी, ज़िक्रिया 1 बाब और उसकी 5 आयत पढ़ लीजिएगा जी। तुम्हारे बाप दादा कहाँ हैं? क्या अनबिया हमेशा जिंदा रहते हैं? जी, वो मरने वाले नबी थे। ये एक और उनमें चीज़ थी, क्योंकि वो इंसान थे इसलिए वो मर जाते थे, और वो मरने के वसीला से हकीकी तौर से इंसानों के दरमियान नहीं ज़िंदा रहते थे। जब इन सब खामियों को खुदा ने महसूस किया तो फिर खुदा ने कहा कि कोई ऐसी शख्सियत की मुझे ज़रूरत है जो कि एक हकीकी नबी हो, जो कि एक सच्चा नबी हो, और एक ऐसा शख्स जो एक हकीकी नबी के तौर पर इंसान के और खुदा के दरमियान की जो जुदाई है उसे सही तौर से ख़त्म कर सके। फिर खुदा ने यसाई की किताब और उसका 7 बाब पर 14 आयत में 700 साल पहले खुदा ने एक पेशेंगोई की। पढ़ लीजिएगा जी। लेकिन खुदावन आप तुमको एक निशान बख्शेगा। देखो, एक कमारी हमला होगी और बेटा पैदा होगा, और वो उसका नाम अमानुएल रखेंगे। जी, इंसान भी मायूस हो गया, खुदा भी मायूस हुआ कि ये नबी सच्चे नबी नहीं निकले। इंसान भी मायूस हुआ कि जिनको खुदा ने हमारे लिए मुकर्रर किया ताकि इंसान की और खुदा के दरमियान की जुदाई ख़त्म हो, इंसान भी मायूस हो गए कि वो नबी सही नबी नहीं निकले, हकीकी नबी नहीं निकले। तब खुदा ईसा नबी के वसीले से इंसानों से वादा करता है कि मैं तुम्हें एक बेटा बख्शूंगा और उसका नाम इमानुएल होगा, जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ। और फिर वो जो बेटा होगा वो हकीकत में खुदा को तुम्हारे साथ कर देगा। और जब खुदा हमारे साथ हो तो इट मीन्स कि वो जुदाई की दीवार जो इंसानों के और खुदा के दरमियान थी, वो जुदाई की दीवार वो ख़त्म हो जाएगी। और फिर जब हम इस्तिस्ना 18 बाब उसकी 15 पढ़ते तो यहाँ पर लिखा है कि खुदा एक नबी बर्पा करेगा, भाइयों में से एक नबी बर्पा करेगा। और वो नबी का वादा खुदा ने इंसानों के साथ किया, और खुदा ने कहा कि अब तुम परेशान ना हो, मैं एक नबी बर्पा करूँगा। और ये तकरीबन 1400 साल पहले खुदा इस पेशेंगोई को कर रहा है। फिर जब अमाल की किताब 3 बाब उसकी 27 आयत पढ़ें जी, क्या लिखे जी कलाम में। चनाचे मूसा ने कहा कि खुदावन खुदा तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ सा एक नबी पैदा करेगा, जो कुछ वो तुमसे कहे उसकी सुनना। जी, खुदा ने ये वादा किया, और अमाल की किताब में जो है वो कलीसिया इस बात को दोहरा रही है कि खुदा ने कहा था कि मैं तुम में से एक नबी बर्पा करूँगा और तुम उसकी सुनना। क्यों सुनना? इसलिए कि वो हकीकी नबी होगा, और वो नबी होगा जो इंसान और खुदा के दरमियान की जुदाई ख़त्म करेगा। और बहुत इम्पॉर्टेंट जो हवाला जो आप अभी पढ़ेंगे वो यूहन्ना की इंजील 4 बाब और उसकी 1 से 6 आयत है जी। पढ़ लीजिएगा इस हवाले को। 14 बाब, सॉरी, यूहन्ना 14 बाब 6 आयत। ये सबसे इंपॉर्टेंट हवाला है, और ये हवाला इन सब चीज़ों को जाहिर कर देता है जी। ने उससे कहा, राह और हक और जिंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। जी,
बात बाप से मिलने की है, बात खुदा से मिलने की है, बात खुदा के पास जाने की है, बात खुदा के इंसान के दरम्यान की जुदाई से ख़त्म करने की है, तो फिर यीशु मसीह ये कहता है कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, मैं वो रास्ता हूँ जिस रास्ते पर चलकर तुम जो है वो बाप तक जा सकते हो। मैं वो हकीकी हक हूँ जिसके वसीले से तुम खुदा के पास जा सकते हो। मैं वो नबी हूँ जो ज़िंदगी देने वाला नबी है। दूसरे नबी ज़िंदगी देने वाले नहीं थे, बल्कि वो हम पर शरीयत लागू करते थे, और उनकी शरीयत लागू करने की वजह से हम पर मौत आ जाती थी। जहाँ पर शरीयत थी वहाँ पर मौत थी, और जहाँ पर फजल है वहाँ पर ज़िंदगी है। सो यीशु ने कहा ये जो राह और ज़िंदगी, इन तीनों के अलग अलग बड़े ज़बरदस्त इनके मौज़ूआत हैं। सो उसने कहा मैं राह हूँ जिस रास्ते पर चलकर तुम्हारी और बाप की जुदाई ख़त्म हो जाएगी, और मैं वो हकीकी नबी हूँ, मैं वो हक हूँ जो कि तुम्हें सच्ची बात बताएगा, और मैं ही वो हमेशा की ज़िंदगी देने वाला हूँ जिसके वसीले से तुम बाप के पास जा सकते हो। और फिर जब हम देखते हैं यूहन्ना 6 बाप उसकी 14 पढ़ लीजिएगा जी। यहाँ पर क्या लिखा है जी? बस जो मौजज़ा उसने दिखाया, वो लोग उसे देखकर कहने लगे, जो नबी दुनिया में आने वाला था, फिर हकीकत यही है। अब जो मोज़े वो दिखा रहा है, जो काम वो कर रहा है, ये वो काम है जो पहले नबी जो उनसे थे पहले थे वो काम ये नहीं कर सके। वो इस तरह के मोज़े नहीं दिखा सके, इस तरह की तालीम नहीं दे सके। कलाम में लिखा जब यीशु मसीह नासी तालीम दे रहे हैं तो सब लोग सुन के हैरान हो, कहने लगे कि इंसानों ने ऐसा कलाम कभी नहीं किया। उन्होंने कहा कि ऐसा कलाम कभी इंसान ने नहीं किया, इसलिए कि वो बड़े इख्तियार के साथ बात करता था, और ऐसा इख्तियार किसी नबी के पास हमने आज तक नहीं देखा। सो इसलिए वो जो ने जब ये सब बातें देखी तो कहने लगे कि हमें मालूम होता है कि जो नबी दुनिया में आने को था, कौन सा नबी? हकीकी नबी, सच्चा नबी। उन्हें क्या लगता है यही वो नबी है जो इस दुनिया में आने को था। और जब हम यूहन्ना की इंजील उसका 7 बाप और 40 आयत पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी हमें इसी तरह की बात मिलती है। पढ़ लीजिएगा जी। बस भीड़ में से बास ने ये बातें सुनकर कहा, बेशक यही वो नबी है। जी, तो भीड़ में से फिर लोगों ने जब सुना तो उन्होंने कहा कि हाँ यही वो नबी। अब लोग आपस में भी एक दूसरे से बात करें और वो ये कह रहे हैं कि यही वो नबी है। जब हम लूका की इंजील और उसका 7 बाप और उसकी 16 आयत पढ़ लीजिएगा जी। और सब पर दहशत छा गई और वो खुदा की तमजीद करके कहने लगे कि एक बड़ा नबी हम में बर्पा हुआ है और खुदा ने अपनी उम्मत पर तवज्जो की है। जी, फिर वो कहने लगे कि एक बड़ा नबी हम में बर्पा हुआ है और यकीनन खुदा ने हम पर एक तवज्जो की है। सो अब हम ये देख रहे थे कि हमें हमारा पहला मसला था गुनाह, सॉरी अब्लीस, यस। दूसरा मसला था गुनाह, तीसरा मसला था खुदा से जुदाई, इन मसलों को पूरा करने के लिए खुदा ने जिन लोगों का चुनाव किया, वो थे बादशाह, काहिन और नबी। मगर ये तीनों अपने अपने वक्त में आकर सब हो गए नाकाम। और ये 3 अलग अलग शख्सियतें थी जिनको खुदा ने मुकर्रर किया। ऐसा नहीं हो सकता था कि एक ही शख्स बादशाह और काहिन होता, एक शख्स नबी काहिन होता, एक ही शख्स तीनों होते। मगर फिर इसके बाद जब ये सब नाकाम हो गए तो फिर खुदा ने क्या किया? जब ये सब नाकाम हो गए, पहला मसला इब्लीस जिसके लिए खुदा ने बादशाह को भेजा, दूसरा मसला गुनाह जिसके लिए काहिनों को उसने तैयार किया, तीसरा मसला खुदा से जुदाई जिसके लिए उसने नबियों को तैयार किया। मगर ये तीनों अपने अपनी जगह पर नाकाम हुए और ये मुकम्मल जो है वो परफॉर्मेंस नहीं कर सके। तो फिर खुदा ने इन तीनों चीज़ों को मिलाकर खुदा ने अपने बेटे यीशु को भेज दिया जिसने हमारी खातिर सब कुछ किया। अब यीशु क्या है?
अब यीशु को उसने भेजा, और यीशु क्या है? यीशु सच्चा बादशाह भी है, या हकीकी बादशाह कह लें, सच्चा बादशाह यहाँ पे लिख लें जैसे सब लिखा है। यीशु हमारा सच्चा बादशाह भी है, यीशु सच्चा बादशाह भी है, यीशु सच्चा काहिन भी है, यीशु सच्चा नबी भी है। अब यीशु मसीह नासरी में ये तीनों खासियतें जो हैं वो मर्ज हो गई हैं, और तीनों खासियतों ने मिलकर जिस हस्ती को तैयार किया इस दुनिया बनी हुई इंसान के लिए, उसका नाम क्या है जी? यीशु मसीह नासरी। और इसी यीशु मसीह नासरी को उसने दुनिया में भेजा है, और हम सब इसके पैरोकार कहलाते हैं, शागिर्द। हम सब इसके क्या हैं जी? शागिर्द। और ये शागिर्द जब इस दुनिया में फैले हैं, यानी कि हम सब इस दुनिया में से निकलेंगे, तो हम बहुत सारे शागिर्दों को मसीह के पास लाने का वसीला बनेंगे। और हमारी ये जो कॉन्फ्रेंस है, इसका मेन उन्वान यही है। इस यीशु मसीह के वसीले से जो शागिर्द पैदा हुए, वो आगे बहुत सारे शागिर्द लोगों को शागिर्द बनाने का वसीला बने, सबब बने। और आप सबको इसीलिए यहाँ पर बुलाया गया है कि आप यहाँ से निकलें, एक शागिर्द यहाँ से निकलें, और वो और दूसरे लोगों को भी शागिर्द बनाने वाला हो, मसीह का शागिर्द बनाने वाला हो, यीशु के बारे में उन्हें बताने वाला हो, यीशु की तालीम देने वाला हो। किताब मुकद्दस की तालीम भी देंगे, लेकिन वो बाद में आएगी। जब हम किताब मुकद्दस के मंबा को पहचान जाएंगे, तो फिर हम किताब मुकद्दस को भी पहचानेंगे। हमने, आप जितने भी यहाँ पर हैं, आपको मैं इनकरेज करना चाहता हूँ, जब आप यहाँ से जाएं तो हम क्या करेंगे जी? जोर से बोलिए, क्या करेंगे? हम सब शागिर्द बनाएंगे। और अगर एक एक शख्स अगर एक साल में अगर एक मिसाल को 5-10 भी शागिर्द बनाता है, तो एक फ़र्द कितने लोगों को शागिर्द बनाने का वसीला बनेगा। और यही असल में वो बात है जिसके लिए यीशु मसीह नासरी इस दुनिया में आए, सच्चे बादशाह बनकर, सच्चे कायन बनकर, सच्चे नबी बनकर, ताकि वो शागिर्द पैदा करें, वो शागिर्द और शागिर्द, वो और शागिर्द। और इस तरह क्या होगा? इस तरह यह होगा कि पूरी जो दुनिया है वो मसीह की शागिर्द बनने की तरफ चली जाएगी। और जैसा कि कलाम में लिखा है कि हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा, और हर एक नाम इकरार, हर एक ज़ुबान इकरार करेगी कि यीशु ही मसीह है, यीशु ही मसीह है। हर एक ज़ुबान इकरार करेगी, और हम सब इस काम में हिस्सेदार हैं खुदावंद यीशु के। हमें इस बात पे फ़ख्र होना चाहिए, आपको इस बात पे फ़ख्र होना चाहिए कि आप सब मसीह के इस ज़बरदस्त मिशन में उसके साथ हिस्सेदार हैं। और जब हम हाथ साथ मसीह के साथ मिलाएंगे, तो फिर हम उसकी ये खूबियाँ ज़ाहिर करके लोगों को शागिर्द बनाएंगे, और पूरी दुनिया को हम जीतने वाले होंगे। आमीन। आए हम इसी तरह करें, और इसका अहद हम करने वाले होंगे। हम सब खुदा की हुज़ूरी में खड़े हो जाएं, और हम दुआ करेंगे। चंद मिनट हम दुआ करें, क्योंकि अभी चंद मिनट हमारे बाकी हैं, और इन मिनटों में मैं चाहता हूँ कि हम दुआ करने वाले हों। आए हम सब खुदा की हुज़ूरी में झुकें, और हम दुआ कर दें। हालेलुया। सब खुदा की हुज़ूरी में झुकें।